بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میں ساہیوال کے قریب ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ میرا نام عاقل ہے۔ میری 5 بہنیں ہیں اور ایک بھائی۔ میرا بھائی دلاور بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور میں سب سے چھوٹا۔ دلاور اور میری عمروں میں 19 سال کا فرق تھا۔ میری عمر اس وقت 5 سال کی تھی۔ بیٹیوں کی شادی سے فارغ ہو کر اماں دلاور کی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ موت نے آ لیا۔ دلاور کی شادی بہت جلدی میں ہوئی کیونکہ ماں کے بعد میری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ میرا باپ اور بھائی کھیتوں میں کام کرنے چلے جاتے تو میں گلیوں میں آوارہ گھومتا رہتا۔ اس دن میں بہت خوش تھا۔ ہمارا گھر رنگین جھنڈیوں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ دروازے پر بینڈ بج رہا تھا۔ گھر کے سامنے والے میدان میں شامیانہ لگا ہوا تھا۔ مہمان جوق در جوق آ رہے تھے اور کھانا کھا کر جا رہے تھے۔ میراثیوں اور ہیجڑوں نے شور مچا رکھا تھا اور میرا باپ خوشی سے نہال ہو کر انہیں پیسے دے رہا تھا۔ پھر شام ہو گئی، سارے مہمان رخصت ہو گئے۔ اب صرف قریبی رشتہ دار اور گھر والے رہ گئے۔ اپنی بھابھی کو قریب سے دیکھنے کا موقع مجھے اب ملا۔ بھابھی تو چاند کا ٹکڑا تھی۔ خدا نے جیسے اس کی مٹی کو دودھ میدے میں گھون کر بنایا تھا، دودھ کی طرح سفید رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، یاقوتی ہونٹ اور سیاہ لامبے بال، زیور سے لدی پھولوں سے سجی لال جوڑے میں ملبوس وہ مجھے اتنی اچھی لگی کہ اس سے نظر ہٹانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ماتھے پر ٹیکا چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا اور میرا بھائی میرے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر میری نظر تو بس بھابھی پر جمی ہوئی تھی۔ بھابھی بمشکل 17 سال کی تھی، الہڑ اور کامنی سی۔ مجھے اپنی طرف مسلسل دیکھتے پا کر وہ مسکرا دی۔ شاداب ہونٹوں پر مسکراہٹ نے اس کے حسن میں اضافہ کر دیا۔ اس نے اپنے مہندی اور چوڑیوں سے سجے ہاتھ سے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ مجھے اپنے پاس بلا کر پیار کیا تو میں نے بے ساختہ اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور تیزی سے باہر بھاگ گیا۔ آس پاس کھڑے لوگ بے ساختہ ہنس پڑے۔ اگلے دن بھابھی نے گھر کا کام سنبھال لیا کیونکہ دلاور کی شادی اسی لیے جلدی میں کی گئی تھی کہ ماں کے بعد کوئی گھر دیکھنے والا نہیں تھا۔ مجھے اپنی سجی سجائی، زیور سے لدھی، اچھے اچھے کپڑے پہنے، ہنائی ہاتھوں میں کام کرتی بھابھی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میرا ہر کام وہ ماں کی طرح کرتی، مگر وہ مجھے ماں سے بھی زیادہ اچھی لگتی۔ وہ بھی خود کو سجا سنوار کر رکھتی تھی، مہندی اور چوڑیاں اترنے ہی نہیں دیتی۔ جیسے ہی ہاتھوں میں چوڑیاں کم ہو جاتیں، وہ چوڑیوں والی ماسی کو بلا کر پھر ہاتھ بھرا لیتی اور پھیکی مہندی کو پھر سے گہرا کر لیتی۔ وہ مجھے جگانے آتی تو میں جان بوجھ کر سوتا بن جاتا۔ وہ مجھے اٹھانے کی کوشش کرتی اور میں اسے ایک آنکھ کھول کر دیکھتا رہتا۔ وہ روٹ کر جانے لگتی تو میں جھٹ سے آنکھیں کھول دیتا۔ پھر وہ اپنے سرخ سرخ ہاتھوں سے مجھے لسی کا گلاس دیتی تو میں اسے دیکھتا اور مسکراتا چلا جاتا۔ میری محویت پر وہ مسکرا دیتی۔ آہستہ آہستہ اس نے گھر کے سارے کام اپنے ذمے لے لیے۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی وہ اٹھ جاتی اور گھر کے کام کرنے لگتی۔ مجھے بھی بڑے پیار سے اٹھاتی، نہلا دھلا کر ناشتہ کروا کر مجھے اسکول بھیجتی۔ میرا تو دل چاہتا کہ میں اسے ہی دیکھتا رہوں۔ اسکول میں بھی میں بھابھی کی باتیں کرتا۔ اس کے بنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ بھی مجھے بہت پیار کرتی۔ رات کو مجھے اپنے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پلاتی، پھر میرا سر سہلانے لگتی۔ جب تک میں سو نہ جاتا، میرے سرہانے سے نہ اٹھتی۔ اس معصوم سی لڑکی میں نہ جانے اتنی ممتا کہاں سے آ گئی تھی۔ وقت کا پنچھی اڑتا رہا۔ بھائی اور بھابھی کی شادی کو 5 سال ہو گئے، مگر بھابھی کی گود ہری نہ ہوئی۔ اب سبھی لوگ بھابھی کو پوچھنے لگے تھے، مگر بھابھی کو تو اس بات کی جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ پھر باپو نے جیسے دھمکی دی کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرا دے گا۔ اسے تو بس اولاد چاہیے تھی۔ باپو کی بات پر دلاور کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ وہ ہرگز دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ناراض سی بھابھی کو زبردستی گاؤں کی ڈسپینسری لے گیا۔ بھابھی کو اولاد کا غم نہیں تھا، بس یہی خوف تھا کہ کہیں دلاور سب کے کہنے پر دوسری شادی پر راضی نہ ہو جائے۔ وہ سب کچھ کر سکتی تھی مگر سوتن برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بات مجھے بھی بری لگی۔ میں تو بھابھی کے روپ میں کسی اور کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ خیر بھابھی کا معائنہ ہوا تو پتہ چلا کہ اس میں کوئی نقص نہیں۔ البتہ ڈاکٹرز نے کہا کہ بھائی کو بھی اپنا میڈیکل چیک اپ کروا لینا چاہیے، مگر دلاور کی انا کا سوال تھا۔ وہ اپنی مردانگی پر یہ الزام نہیں سہ سکتا تھا کہ اس کے اتنے لمبے چوڑے وجود میں کوئی ایسی کمی ہو سکتی ہے کہ وہ باپ نہ بن سکے۔ جس دن وہ شہر سے معائنہ کروا کر آیا، سارا دن کمرے میں منہ چھپائے پڑا رہا، نہ روٹی نہ پانی۔
बेचारी भाभी मिन्नतें कर कर के हार गई, मगर दिलावर ने नज़र उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा। आखिरकार भाभी ने हाथ जोड़ दिए, उसकी आंखें भर आईं। करीब था कि वो रो दे। उसने आज तक भाभी की आंखों में आंसू नहीं देखे थे, कैसे अब उसे रोने देता। नूरा ने उसके शाने पर सर रख दिया। दिलावरे, हम किसी को नहीं बताएंगे कि असल बात क्या है। दुनिया जो कहती है कहने दे। तू कह देना कि खराबी मेरे में है, हमें परवाह करने की ज़रूरत ही क्या है। दिलावर प्यार भरी नज़रों से उस खुलूस और वफा के पैकर को देखता रहा। और फिर भाभी ने तो मुझे ही अपना बेटा मान लिया, गोया वो मुझे पाकर फिर से माँ बन गई थी। भाभी कहती थी कि मेरे प्यार भरे सलूक ने उसे लगने ही नहीं दिया कि अब तक उसकी गोद नहीं भरी। वाकई औरत का सबसे खूबसूरत रूप वो होता है जब वो माँ बनती है, और शायद नूरा तो उसी वक्त मेरी माँ बन गई थी जब वो इस घर में आई थी। मैंने मैट्रिक पास किया तो बाप और भाई दोनों की मर्ज़ी थी कि मैं पढ़ाई छोड़कर खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाऊं, लेकिन मुझे लाहौर जाकर पढ़ने का जुनून था। ये बात बापू से कहने की मेरी हिम्मत नहीं थी, इसलिए भाभी ने ही अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उसने ज़िद करके ससुर और शौहर से मुझे कॉलेज में दाखिले की इजाज़त लेकर दी। यूँ भी उसने सबका दिल जीत लिया था। घर के हर फर्द की वो दिलो जान से खिदमत करती और बदले में प्यार वसूल करती। मुझे पढ़ाई के लिए लाहौर जाना था और हॉस्टल में रहना था, और इस सब के लिए दाखिले में बड़ी रकम दरकार थी। बापू ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन भाभी की बरी के सारे गहने मेरी पढ़ाई पर कुर्बान हो गए। उसके पास जहेज़ का जेवर बहुत था। सोने के कड़े उसने उतारे, बापू की झोली में डाल दिए। बापू ने लेने से इनकार किया तो रूहानसी होकर बोली, ये तो सोने के कड़े हैं ना चाचा, अगर अपने देवर की पढ़ाई के लिए मुझे अपने आप को भी बेचना पड़े तो मैं राज़ी हूँ। उस रात जब वो दूध का गिलास देने आई तो मैं उसके हाथ थाम कर रो पड़ा। हाय हाय, ये 6 फुट का जवान रोता हो अच्छा लगता है क्या। भाभी ने मजाक में बात टालना चाही तो मैं और ज़ोर से रो पड़ा। भाभी सच्ची, तो मेरी भाभी नहीं मेरी माँ है। हालांकि वो माँ तो क्या, मेरी बड़ी बहन भी मुश्किल से लगती थी। गुजरते वक्त ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। वही रंग रूप, वही अल्हड़पन, वही भोलापन। जब ब्याह कर आई थी तो धान पान सी लगती थी, अब तो वो और भी दिलकश लगती थी। मेरी बात के जवाब में उसने मेरे सर पर हल्की चीत मारकर कहा, शुक्र है तूने मुझे माँ माना तो सही, बस मेरी दुआ कबूल हो गई। मैं उसकी गोद में सर रखकर रोने लगा। उसके लाख कहने पर भी मैं उसे दोबारा माँ कहकर पुकार नहीं सका, हालांकि ये उसकी बड़ी ख्वाहिश थी। उन दिनों जब मैं हॉस्टल जाने वाला था तो भाभी बिल्कुल गुमसुम होकर रह गई। वो मेरे सारे काम अपने हाथों से करती थी, मेरा ख्याल रखती थी। पढ़ाई जब ज़्यादा करना होती तो वो गर्म दूध लाकर मुझे देती, कभी चाय बना कर देती, कभी ज़िद करके मेरे सर में तेल लगाती, फिर उदास होकर कहती, तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा। बाबा और दिलावर तो खेतों पर जाएंगे, मैं खाली घर में कमलियों की तरह फिरा करूँगी। मैंने तो अपनी सखी सहेलियों को भी तेरे लिए छोड़ दिया। तू उदास होती है तो नहीं जाता, मुझसे उसकी उदासी देखी न जाती। ना अकेला, ऐसा न बोल, जाना है तुझे, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर नहीं बनना। छुट्टियों में घर आता तो भाभी फूल की तरह खिल जाती और ये वक्त तेज़ी से गुजर जाता। ज्यों-ज्यों मेरे जाने के दिन करीब आते, भाभी के चेहरे पर वही वीरानी लौट आती और वो उदास होने लगती। दिन गुजरते जा रहे थे, भाभी के बदन पर गहने कम होते जा रहे थे, कॉलेज के खर्चात बढ़ते ही जा रहे थे। मैं बाबू से पैसों का मुतालिबा करता तो उनका पारा चढ़ जाता, कहते कि कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, बस आकर अपनी ज़मीनें संभाल ले। मगर मेरी ज़रूरत भाभी पूरा कर देती। वो कभी कुछ न कहती, न दिलावर को कुछ कहने देती। खामोशी से अपने गहनों में से एक गहना निकालकर मेरे हवाले कर देती। सच तो ये है कि मेरे सारे खर्च भाभी अपने जेवरों से पूरे कर रही थी। उसने न जाने कितने ख्वाब अपनी आंखों में मेरे लिए सजा रखे थे। वो चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर अफसर बन जाऊं, फिर हम बड़ा सा घर ले लें जिसके आगे चौधरी की लैंड क्रूज़र जैसी गाड़ी खड़ी हो। उम्मीदें तो उसकी और भी थीं, मगर इसके आगे उसका सीधा साधा जहन काम नहीं कर पाता था। मैंने FA पास करके BA में दाखिला लिया तो यहाँ भी भाभी का जेवर ही काम आया। इन दिनों मेरे दोस्तों में इजाफा हो गया। मैं एक ऐसी रंगीन दुनिया की सैर करने लगा जिसमें गुम होकर तालीम को तो भूल ही गया। एक दिन हॉस्टल के वार्डन ने हमें नशा करते और जुआ खेलते पकड़ लिया। मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन मैंने गांव में किसी को कानो कान खबर न हुई। फिर जुए शराब की मुझे ऐसी लत पड़ी कि मैं सब भूल गया। मैं वही आकिल था जो भाभी के खाली हाथ आंखों से लगाकर रो पड़ता था और दिल में अहद करता था कि अब इससे ज़्यादा भारी कड़े बनवा कर दूंगा,
अब मैं उसी के सारे जेवर बेचकर खा चुका था और अभी तक उसे ख्वाब दिखा रहा था कि एक दिन बहुत बड़ा अफसर बन जाऊंगा। मेरी आवारगी और गुमराही के किस्से गांव तक पहुंच रहे थे। दिलावर को तो कामों से फुर्सत न थी। बापू मेरे मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए इस दुनिया से सधार चुके थे। एक भाभी थी जो अपने अंदेशों और वसवसों को दिल में दबाए अभी तक मेरी कामयाबी की दुआ मांगा करती थी। बुरे कामों का अंजाम अच्छा नहीं होता। मैं भी बुरी औरतों के चक्कर में पड़ चुका था। आमदन का कोई ज़रिया नहीं था। भाभी के जेवर ख़त्म हो गए तो मैंने कर्ज़ लेना शुरू कर दिया। जब कर्ज़ खाहों ने जीना दो भर कर दिया तो मैं गांव आ गया। घर में भाभी को यही बताया कि मेरी छुट्टियां हैं, लेकिन जब मेरी छुट्टियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, करने को कुछ नहीं था, सारा दिन मैं पड़ा सोता रहता। सुबह अजानों के बाद घर में घुसता। इन्हीं दिनों साथ वाले गांव में एक दोस्त के खाली मकान में जुआ होता। मैं मुसलसल जीत रहा था। पैसा जब जेब में हो तो बाजारी औरतें भी मेहरबान हो जाती हैं। अब मुझे शहर जाकर रहने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे एक दोस्त के पास जीप थी। हम रातों रात शहर जाते और दादे ऐश देकर सुबह तक वापस आ जाते। मैंने भाभी से कह दिया था कि साथ वाले गांव में एक दोस्त रहता है, उसके साथ रात भर पढ़ाई करता हूँ। उसके पास महंगी किताबें हैं जो मैं ख़रीद नहीं सकता। भाभी बेचारी शर्मिंदा होती कि मुझे ऐसी किताबें ख़रीद कर नहीं दे सकती। झूठ बोलना ना बस एक बार मुश्किल होता है, फिर आदमी बेतकान झूठ बोलता जाता है। यही हाल मेरा था। मैंने भाभी को बताया कि मेरे फाइनल इम्तिहान होने वाले हैं, फिर मैं पढ़ाई से फारिग होकर नौकरी पर लग जाऊंगा। उसने मुझसे वादा किया था कि वो किसी भी तरह रकम का बंदोबस्त कर देगी। मैंने उस भोली भाली औरत से काफ़ी बड़ी रकम मांगी थी। साथ ही ये वादा लिया था कि वो कभी दिलावर को नहीं बताएगी। एक रोज़ उसने मुझे बताया कि उसने गांव की सारी लड़कियों का जायज़ा ले लिया है, क्योंकि वो मेरी पढ़ाई के बाद मेरी शादी करना चाहती है, लेकिन कोई लड़की मेरे मयार पर पूरी ही नहीं उतरी थी। जाहिर है उस बेचारी के ख्याल में तो लड़की को एक बड़े अफसर की बीवी बनना था, सो उसमें बहुत सारी खूबियाँ होनी चाहिए थी, कम से कम 10 पास होनी चाहिए। उस रोज़ मगरिब का वक्त था। हम दोनों भाई सहन में चारपाई पर बैठे खाना खा रहे थे। भाभियाँ हमें गर्म गर्म रोटियां पकाकर दे रही थी। रोटियां पकाते पकाते भाभी नूरा को ख्याल आ गया, दिलावर, मासी ने बताया था कि चचा मोहम्मद अहमद की बेटी ने मैट्रिक पास कर लिया है। वो बड़ी सोहनी कुड़ी है, 5 वक्त नमाज की आदी है, घर के काम काज में माहिर है। चल कल चलकर देख आते हैं। ये साथ ही तो गाँव है। आदिल की पढ़ाई के थोड़े ही दिन रह गए हैं और कुछ नहीं तो मंगनी ही कर दे। बड़ा दिल करता है घर में हल्ला गुल्ला हो। अकेले रह रहकर अब मैं थक गई हूँ। मैंने नज़र उठाकर भाभी को देखा। 15 सालों ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। वही रंग, वही रूप। शायद थोड़ी देर पहले नहा कर आई थी। घने लंबे बाल पुश्त पर पड़े थे। पसीने की वजह से चंद लटें संदली पेशानी पर चिपकी हुई थीं। वो पेड़ा बना रही थी और आदतन तेज़ तेज़ बोल रही थी, भाभी, मेरी दुल्हन तेरे जैसी होनी चाहिए, ज़रा भी फ़र्क ना हो। मैं बेख्तियार बोल पड़ा। भाभी बड़े प्यार से मुस्कुरा दी। ले झल्ले, मैं तो ठहरी चिट्टी अनपढ़ देहाती, तेरे लिए बहुत अच्छी दुल्हन लाऊंगी, पढ़ी लिखी और तमीज़ वाली। नहीं भाभी, मुझे तेरी जैसी दुल्हन चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। देख ले दिलावर, कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। भला मैं अपने जैसी लड़की कहाँ से ढूंढूं? भाई हमारी बातों में नहीं बोलता था। वो जानता था कि भाभी मुझे माँ की तरह चाहती है। खैर थोड़ी देर के बाद भाई सो गया। भाभी उसके लिए दूध का गिलास लेकर आई तो वो गहरी नींद सो गया था। उसके हल्के खर्राटे फिजा में गूंज रहे थे। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, मुझे ही सब कुछ करना है। तू तो खेतों में रह या खाट पर। जा वीरा, तू जाने की तैयारी पकड़। भाभी ने दूध का गिलास मुझे पकड़ा दिया। अगले दिन भाभी की आंखों के सारे ख्वाब किरची बनकर टूट गए थे। भाभी का चचाजाद भाई लाहौर से आया तो उसने मेरा कच्चा छटा खोल दिया। उसकी मुलाकात अचानक मेरे क्लास फेलो से हो गई। उसने भाभी को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया कि मैंने उसके जेवर जुए और शराब में उड़ा दिए, बाज़ारे हुस्न की नज़र कर दिए। उसने मेरे बारे में एक एक बात बता दी कि कैसे मैंने गांव में ऐसे दोस्त ढूंढ लिए जो जुए और शराब के रसिया हैं और मैं पढ़ाई के बहाने उनके पास जाता हूँ। ये सुनकर तो भाभी सन्नाटे में आ गई। वो तो इसी अधेड़पन में रही कि दिलावर को ये सब बताए न बताए। दिलावर को पहले ही जेवर बिक जाने का गम था। भाभी उसे तसल्लियाँ देती कि आखिर अफसर बन जाएगा तो हमारे अरमान पूरे कर देगा। अब तो वो ये सोचकर हलकान हो रही थी कि दिलावर को कैसे बताए। वो तो वैसे ही जेवर बेचने के ख़िलाफ़ था। इन दोनों ने मेरी तालीम के लिए बहुत तकलीफ़ें उठाईं, लेकिन ज़ुबान से उफ तक नहीं की। दिलावर गुस्से का भी तेज़ था।
भाभी मुझे हमेशा बचा तो लेती थी, लेकिन आज इस तूफ़ान को रोकना बहुत दुश्वार लग रहा था। मुझे तमाम हालात का इल्म हो गया था। ये भी जानता था कि आने वाले हालात को मैं काबू नहीं कर सकूँगा। दिल तो चाहता था कि भाभी की उस चचाजाद की जान ले लूँ जिसने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया, लेकिन यह भी एहसास था कि हकीकत को कब तक छुपाया जा सकता है। इधर मेरी किस्मत नामेहरबान हो गई। जुए में मैं बड़ी रकम हार करके लाश हो गया। जवारियों के साथ ऐसा ही होता है, वो जीतने की उम्मीद में हारते ही रहते हैं। शराब और बुरे कामों की लत उन्हें और ज़्यादा बर्बाद कर डालती है, लेकिन झूठी आस नहीं छूटती। दिल बहुत परेशान था। सोचा कि चमेली बाई के पास जाकर ज़रा दिल बहलाऊं। कम से कम एक रात तो सब कुछ भुलाकर सुकून से गुजारूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उस कमबख्त औरत को भी मेरी कंगाली का पता था। शराब तो एक दोस्त ने पिला दी, लेकिन उस औरत ने मुझे घर में घुसने नहीं दिया। धक्के देकर गेट से वापस कर दिया। मायूसी में सर फटा जा रहा था। लग रहा था कि सारी दुनिया मुझसे नफरत करती है, कोई मेरा हमदर्द नहीं है। तब उस वक्त भाभी का मुस्कुराता चेहरा मेरे तसव्वुर में उभरा, जैसे वो कह रही हो, तो क्यों परेशान होता है आकला, मैं हूँ ना तेरी हर मुश्किल में काम आने वाली। मैं बगैर सोचे समझे घर की तरफ चल पड़ा। मेरी तो ख्वाहिश यही थी कि भाभी से जाकर सर में तेल डलवाऊंगा। मैं जब भी कभी परेशान होता तो वो यही किया करती थी। न जाने उसकी उंगलियों में कैसा जादू था। मैं जानता था कि आज भाई घर पर नहीं होगा, सो भाई की डांट का भी अंदेशा नहीं था। मैंने घर जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो भाभी ने कुंडी खोली। घर में अकेली थी। अकेले होने की वजह से डरी डरी सी थी। मुझे देखकर उसकी जान में जान आई, मगर फिर वो परेशान सी हो गई। मेरी हालत ही ऐसी थी। मुझे याद नहीं रहा कि मैंने शराब पी रखी है। मेरे ख्याल में भाभी ने शराब की बू महसूस कर ली थी, या तो वो पहचान न सकी। मेरी हालत देखकर इतनी परेशान हो गई कि उसे नज़रअंदाज कर गई। उसने मुझे खाने को पूछा तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं भाभी, सर में सख्त दर्द है, ज़रा सर में तेल डाल दो तो मैं सो जाऊंगा। कहने लगी, नहीं, खाली पेट नहीं सोना, दर्द और बढ़ जाएगा। मैं कुछ न बोला, खामोशी से चारपाई पर लेट गया। वो मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आ गई। आंखें बंद करते ही थोड़ी देर पहले का मंजर मेरी आंखों में घूम गया, जब चंबेली बाई ने मेरी बेइज्जती की थी। अपने को राशना के सामने मुझे जलील किया था। मेरा खून खोल रहा था। जी चाहता था कि उसका गला दबा दूं। मैं कितनी बेकरारी से उसके साथ गया, और उसने सिर्फ इसलिए मुझे वहाँ से धक्के देकर निकाल दिया कि मैं उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता था। हालांकि इसी चमेली पर मैंने लाखों लुटाए थे। थोड़ी देर के बाद भाभी आ गई। मैं उस वक्त ये भूल गया कि मेरे सामने जो औरत बैठी है वो मेरी कौन है। शराब के नशे में बस एक एहसास बाकी रह गया कि मेरे सामने एक औरत बैठी है, जवान और हसीन। मुझे यूँ अपनी तरफ टिकटिकी बांधे देखकर वो घबरा गई। उसे शायद अंदाज़ा हो गया कि इन आँखों से मासूमियत रुखसत हो चुकी है। हमारे दरमियान हमेशा एहतराम का रिश्ता कायम रहा था, लेकिन आज जब वो उठने लगी तो मैंने उसे बेतकल्लुफ़ी से थाम लिया। उसने तेज़ी से अपने हाथ छुड़ाए और पीछे हट गई। उसकी छठी हिस्स ने उसे खबरदार कर दिया था। वो तेज़ी से भागती हुई कमरे में घुस गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुंडी लगाती मैं अंदर दाखिल हो गया। उस वक्त बिजली, जो काफ़ी देर से गायब थी, अचानक आ गई। मैं अपनी जगह पर साकित रह गया। नूरा दिखने में मासूम थी, लेकिन बहुत गैरतमंद औरत थी। उसने हाथों में छुरी पकड़ी थी और वो कपकपा रही थी। मेरे ऊपर तो उस वक्त शैतान सवार था। वो गिड़गिड़ाने लगी, देख आकले, मैं तेरी माँ हूँ। होश में आ, ये तुझे हो क्या गया है? मैं तो जैसे कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने कहा, तू मेरी माँ भी नहीं, भाभी भी नहीं, तू मेरी कुछ भी नहीं, बस एक औरत है जिसकी मुझे ज़रूरत है। मान जा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो ये सुनकर ही कांप उठी। शर्म कर आकले, तू अपनी माँ का नाम ले रहा है। इससे पहले तूने कभी ऐसा नहीं किया। नूरा की आवाज़ में जैसे सदमे का दर्द था। ना आकले, अपनी जगह से ना हिलना। देख मेरे हाथ में क्या है। मैं तुझे मार नहीं सकती, लेकिन खुद को ख़त्म कर डालूंगी। मान जा वीरे, मैं तेरे भाई की इज्जत हूँ, तेरी माँ हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। मुझे ज़िंदा रहना है, तेरे लिए, दिलावर के लिए, आने वाली खुशियों के लिए। अब तो हमने खुशियों के सपने ही देखे हैं, अब तो इनके पूरे होने का वक्त आया है। मैंने तेरी शादी के न जाने कितने ख्वाब देखे हैं। मुझे मरने पर मजबूर न कर वीरे, मुझे जीने दे। मेरा जीने को दिल करता है, मौत से डर लगता है मुझे। इस घर से, तुझसे, तेरे भाई से बहुत प्यार है। उसकी गिरफ्त मजबूत पड़ती जा रही थी। आकले, तुझे डर लग रहा है? ना, तू डर नहीं, मैं तुझे नहीं, अपने आप को मारूंगी। कभी सुना है तूने कि माँ ने अपने पुत्र की जान ले ली हो? तुझे रब का वास्ता कमरे से निकल जा,
चला जा यहाँ से, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, दिलावरे को भी नहीं, खुद भी भूल जाऊंगी। हम पहले की तरह रहेंगे। तो यहाँ से चला गया। अब अगर तू मेरे 10 गिनने तक बाहर नहीं गया ना तो खुद को मार डालूंगी। मैं पत्थर बना उसे देख रहा था। उस वक्त तक मैं पूरी तरह होश में आ गया था। मैं ये सोच रहा था कि उसके हाथ से ये मौत का सामान कैसे छीनूं। भाभी ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। मैं उसे छोड़कर भी नहीं जा सकता था। वो गिनती गिने जा रही थी। मैं आहिस्तगी से आगे बढ़ा, लेकिन उस वक्त वो खून में लथपथ होकर ज़मीन पर आ रही थी। मैंने सुना वो डूबती हुई आवाज़ में कह रही थी, मुझे माँ कहकर पुकार दे आकिले, बस एक बार माँ कह दे। मेरे कान सारी हयाती इस लफ्ज़ को तरसते रहे हैं, बस एक बार माँ कह दे। भाभी की आवाज़ डूब रही थी। तू नहीं कहेगा? अच्छा रहने दे, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। दिलावरे से कह देना कि नूरा हमेशा से उसकी थी और उसी की होकर इस दुनिया से जा रही है। ये कहते कहते उसकी गर्दन ढलक गई। मैंने तड़पकर उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। माँ सुन ले, मैं तुझे माँ कह रहा हूँ, सुन ले। तुझे मेरी कसम, जाने से पहले एक बार सुन ले, तू मेरी भाभी नहीं माँ है। मैं धाड़े मार मार कर रो रहा था, तड़प रहा था, लेकिन मेरे मुंह से माँ का लफ्ज़ सुनने को तरसने वाली हमेशा की नींद सो चुकी थी। मुझे होश नहीं था मैं कहाँ हूँ। मुझ पर भाभी के कत्ल का इल्ज़ाम लग गया था, मगर मैं हर बात से बेखबर था। भाभी की लाश को सीने से लगाए चीख चीख कर रो रहा था, अपने सर के बाल नोच रहा था। मेरे सर से भल भल खून बह रहा था, लेकिन ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठने वाली गहरी नींद सो रही थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।